اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلی خبر کا تعلق بھارت سے ہے کہ بھارت میں اس سال شدید موسمی واقعات جیسے ہیٹ ویوز اور آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں بہت بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا، اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ان سے منسلک اموات کی تعداد 3 برس میں سب سے زیادہ تھی۔ سائنسدانوں نے بھی اس بھاری جانی نقصان کے لیے آب و ہوا کی تبدیلی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس سال شدید گرمی کی لہروں یا ہیٹ ویوز میں 8 گنا زیادہ تھی، جن کی تعداد مجموعی طور پر 27 تھی۔ آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں 111 گنا زیادہ اضافہ ہوا ہے، جس کی زد میں آ کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 907 ہے۔ مسجد الحرام کے معمر ترین نمازی الشیخ عوض المعوض الحربی انتقال کر گئے۔ وہ 100 سال سے زائد سے عرصے سے وہاں نماز پڑھ رہے تھے۔ مکہ مکرمہ سے تعلق رکھنے والے عوض معوض الحربی سعودی عرب کے طویل العلم اور انسان تھے۔ معوض الحربی 1 صدی سے زائد مسجد الحرام میں نمازی رہے، جس پر انہیں حمامۃ الحرم یعنی خانہ کعبہ کا پناہ گزین کبوتر ہونے کا خطاب سے نوازا گیا تھا۔ لندن کے مختلف علاقوں میں برف باری ہوئی ہے۔ رات کا درجہ حرارت -1 رہنے کا امکان ہے۔ برف باری کے باعث ٹرانسپورٹ کا نظام متاثر ہے۔ بسیں اور ٹرینیں تاخیر کا شکار ہیں۔ اسکاٹ لینڈ اور ویلز میں جمعہ ہی سے برف گرنے کا آغاز ہو گیا تھا۔ موسمیات کے مطابق منگل کو بھی برف باری کا امکان ہے۔ حال ہی میں برطانیہ میں تاریخ کی شدید ترین سردی کی پیشین گوئی کی گئی تھی۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار چاند پر کاروباری سرگرمیوں کی تیاری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جاپانی اسٹارٹ اپ کا خلائی جہاز ملک کے پہلے قمری مشن پر چاند پر روانہ کر دیا گیا ہے، اور یہ نجی کمپنی کی جانب سے اپنی نوعیت کا پہلا مشن ہے۔ میڈیا کے مطابق ایلون مسک کے اسپیس ایکس کے ذریعے امریکی ریاست فلوریڈا کے 5 سینٹر سے خلائی جہاز کو روانہ کیا گیا ہے۔ اب تک صرف امریکہ، چین اور روس ہی چاند کی سطح پر روبوٹ بھیجنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ پاکستانی پنجاب کے شہر ظفروال میں دلہن والوں نے بارات پہنچنے پر شادی سے انکار کر دیا۔ دلہا جب بارات لے کر دلہن کے گھر پہنچا تو دلہن والوں نے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ دلہے کی بہن کا کہنا ہے کہ دلہن والوں نے کہا ہے کہ دلہا گونگا ہے، اس لیے وہ اب شادی نہیں کریں گے۔ تھائی لینڈ میں ہفتے کے روز 10 ملین غیر ملکی سیاحوں کی میزبانی پر جشن منایا گیا۔ ٹورزم کے محکمہ کے مطابق تھائی لینڈ عالمی وبا سے پہلے والی صورتحال کی جانب گامزن ہے، مگر راہ ابھی طویل ہے۔ تھائی لینڈ میں 2019 میں 40 ملین غیر ملکی سیاح پہنچے تھے۔ تاہم کورونا کی عالمی وبا کے بعد تھائی لینڈ کی جانب سے سخت ترین بارڈر سیکورٹی اور ضوابط کے باعث یہ صنعت بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ گزشتہ برس برطانیہ میں شراب کی وجہ سے ہونے والی اموات ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے کورونا کی وبا کے دوران شراب نوشی میں اضافہ ہوا ہے۔ برطانیہ کے دفتر شماریات کے مطابق 2021 میں ملک میں شراب سے مرنے والے افراد کی تعداد 9641 تھی۔ اس کے مقابلے میں 2019 میں 7565 اموات ریکارڈ کی گئی تھی، یعنی شراب سے ہونے والی اموات میں 27% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ وبا سے پہلے کے برسوں میں دیکھا گیا تھا کہ مردوں میں شراب نوشی سے مرنے کے امکانات خواتین سے دگنا ہوتے تھے۔ 2019 تک کے 7 برسوں میں برطانیہ میں شراب نوشی سے ہونے والی اموات کی شرح ایک خاص سطح سے اوپر نہیں گئی تھی، تاہم 2020 اور 2021 میں اس شرح میں اضافہ ہو گیا تھا۔ جرمنی میں بغاوت کی سازش کے بعد حکومت کا اسلحہ قوانین سخت کرنے کا فیصلہ۔ جرمنی کے وزیر داخلہ نینسی فائزر نے کہا ہے کہ انتہائی دائیں بازو کے گروہ کی طرف سے پرتشدد طریقے سے حکومت کا تختہ الٹنے اور شاہی خاندان کے سابق رکن کو قومی رہنما بنانے کی سازش کے شبہ میں اسلحہ رکھنے اور خریدنے کے قوانین کو سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ دائیں بازو کی انتہا پسند تنظیم ریخس برجر جرمنی کے لیے خطرہ ہے، جس کے پاس گزشتہ 2 برس کے مقابلے میں لوگوں کی تعداد بڑھ کر 23,000 ہو چکی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ معصوم لوگ پاگل نہیں بلکہ مشتبہ دہشت گرد ہیں جو اب ٹرائل سے قبل حراست میں ہیں۔ بارسلونا میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواد، حبیب ولیج ریسٹورنٹ۔ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول، کشادہ حال، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام۔ الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان۔ شیشہ اور پول ٹیبل کے شوقین کے لیے آئیڈیل جگہ۔ خوبصورت تراسا بارسلونا کے ساحل کے قریب سینٹرو کمرشیال لا ویا میں واقع۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔
नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ अरीज हॉल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9, नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। इटली के कैपिटल रूम में मुसल्लह शख्स ने एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में होने वाले रिहायशियों की मीटिंग के मौका पर फायरिंग करके 3 खवातीन को हलाक और 14 को जख्मी कर दिया। रूम से अतालवी मीडिया के मुताबिक 57 साला शख्स ने मुकामी अपार्टमेंट एसोसिएशन के अरकान पर फायरिंग की। फायरिंग से जख्मी होने वाले एक शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हलाक होने वालों में इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी की दोस्त भी शामिल थी। जर्मनी के शहर ड्रेसडन में मसल्लह हमलावरों की फायरिंग से खातून हलाक हो गई। मुलजिम ने खातून को मारने के बाद एक मुकामी रेडियो स्टेशन पर भी हमला किया और शॉपिंग मॉल में घुसकर मुतअद्दिद अफराद को यरगमाल बना लिया। यह वाकया ड्रेसडन के तारीखी सेंटर के शॉपिंग मॉल में पेश आया। पुलिस ने कई वाक़े क्रिसमस बाजार को बंद करवा दिया है। लंदन में हजारों पोस्टल मुलाजमीन ने पार्लियामेंट स्क्वायर तक एहतजाजी मार्च किया। मार्च में शरीक पोस्टल मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया और बरतानवी पोस्टल कंपनी के CEO साइमन थॉमसन के इस्तीफे का मुतालबा भी किया। रॉयल मेल के हजारों पोस्टल वर्कर्स जुमा से हड़ताल पर हैं, जिससे क्रिसमस के मौका पर सार्फिन को पार्सल्स और डाक की तरसील मुतासर हुई है। पोस्टल मुलाजमीन 14, 15, 23 और 24 दिसंबर को भी हड़ताल जारी रखेंगे। हड़ताल की वजह से डाकखानों में लाखों खतूत और पार्सल्स का ढेर लगा हुआ है। सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में पुलिस ने बूढ़े अफराद से धोखा फरेब के जरिए नकदी हेंटने और सामान चोरी करने वाले 4 जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया है। यमन से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स और 3 गैर कानूनी तारकीन वतन ने सऊदी अरब के दूसरे बड़े शहर में बूढ़े अफराद को निशाना बनाया, उन्हें धोखा दिया और उनकी नकदी और दीगर जाती सामान चोरी कर लिया। पाकिस्तान में FIA साइबर क्राइम सर्कल फैसलाबाद ने चिन्हट में कार्रवाई करते हुए बैरून मुल्क भेजने का झांसा देकर लोगों को लूटने वाले 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान सोशल मीडिया पर बैरून मुल्क मुलाजमत के जाली इश्तिहारात लगाते थे। मुलजमान बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए बटोरने में मुलव्विस थे। FIA का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान में अली असगर, आसिफ बिलाल, शब्बीर और मोहम्मद इकबाल शामिल हैं। मुलजमान से बरामद होने वाले 4 मोबाइल फोन और गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया है। अफ्रीकी मुल्क जाम्बिया के दारुल हुकूमत ओसाका में सड़क के किनारे 27 अफराद की लाशें मिली हैं जो इमिग्रेंट्स हैं। जाम्बिया पुलिस तर्जमान डिप्टी मोले के मुताबिक हलाक शुदगान से मिलने वाली दस्तावेजात से पता चलता है कि वो इथोपिया से आने वाले इमिग्रेंट्स थे जिनकी मौत रास्ते में धम घुटने से हुई है, जिसके बाद लाशों को सड़क किनारे फेंक दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मरने वालों की तमाम अफराद की उम्रें 20 से 38 साल के दरमियान है। स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में तकरीबन 500 अफगान बाशिंदों ने एक 18 साल अफगान पनागज़ीन की खुदकशी के बाद एहतजाज किया। गुज़िश्ता हफ्ते को एक अफगान नौजवान ने खुदकशी कर ली थी क्योंकि इस नौजवान को स्विट्जरलैंड से यूनान डिपोर्ट किया जाना था। अफगानी नौजवान की खुदकशी से स्विस इमिग्रेशन पॉलिसी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के एक हालिया सर्वे में यह बात सामने आई है कि मुल्क के 62% नौजवान मुल्क छोड़ना चाहते हैं। सर्वे में सामने आने वाले आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क छोड़कर जाने की ख्वाहिश 15 से 24 वर्ष की उम्र के नौजवानों में सबसे ज्यादा है। सर्वे के मुताबिक माशी सूरत हाल, काम करने के यकसा मौके और इज्जत के हसूल मुल्क छोड़कर जाने वालों की वजूहात में शामिल है। बड़ी उम्र के अफराद में मुल्क छोड़कर जाने की ख्वाहिश की वजह उनके बैरून ममालिक में रहने वाले बच्चे हैं। बार्सिलोना शहर में एक ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। हादसे में एक टैक्सी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। यह वाकया सुबह 6:30 बजे पेश आया। वाकये के बाद गुआर्दिया उर्बाना बार्सिलोना के एहलकार, मेडिकल इमरजेंसी सिस्टम के पैरामेडिक्स और बार्सिलोना फायर डिपार्टमेंट के अराकीन जाए हादसा पर पहुंच गए। जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद पहुंचाई गई। हादसे की वजह से ट्रैफिक का सिलसिला मुनक़ता हो गया और 8:30 बजे तक गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल नहीं हो सकी थी।
बार्सिलोना में पुलिस मोसेस एस्क्वाड्रा ने 31 से 44 साल की उम्र के 3 अफराद को एक जराइम पेशा गिरोह से ताल्लुक रखने पर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजमान स्कूल, स्पोर्ट्स सेंटर्स और कारोबारी मराकज में कम से कम 22 डकैतियों के मुर्तकिब हैं। मुलजमान ने कातालुनिया के दीगर तफरीह, स्पोर्ट्स और सेंटर्स में वारदातें की। गिरफ्तारी के वक्त मुलजमान टैक्सी में 19,000 यूरो लेकर कातालुनिया से फ्रांस फरार होने की कोशिश कर रहे थे। स्पेनिश ऑफिसर ने तस्दीक की है कि उन्हें जनूब मशरकी साहिल से 3 इमिग्रेंट्स की लाशें मूर्सिया के साहिल से मिली है, जबकि कश्ती में सवार 6 दीगर अफराद को जिंदा बचा लिया गया है। स्पेनिश ऑफिशियल ने बताया कि कुल 35 तारकीन वतन 4 मुख्तलिफ कश्तियों पर स्पेन पहुंचे थे। नए साल 2023 में 18 साल के नौजवानों को कल्चरल बोनस 2022 के 400 यूरो की फाइनेंशियल एड मिलेगी। नौजवान ये रकम म्यूजिक, कंसर्ट्स, फेस्टिवल, सिनेमा टिकट, म्यूजियम, अदबी मेले यानी लिटरेरी फेस्टिवल्स वगैरह के लिए खर्च कर सकेंगे। स्पेनी हुकूमत के फाइनेंशियल एड 2022 के ऐलान से मुल्क भर में 5 लाख नौजवान फायदा उठा सकेंगे, जिनमें से 82,000 नौजवानों का ताल्लुक कातालुनिया से है। मेट्रोपॉलिटन एरिया ने साल 2023 के लिए टैक्सी के किरायों की मंजूरी दे दी है। टैक्सी सर्विस में एवरेज 5.6% का इजाफा होगा। बिलखसूस दिन के वक्त की एवरेज तैरीफा उनों में 5.1% इजाफा होगा और रात और वीकेंड पर शरह तैरीफा दोस्त में 6.2% इजाफा होगा। जनवरी से सप्लीमेंट की कीमत और टैक्सी मीटर और फिक्स प्राइस के साथ कम से कम किरायों को भी अपडेट किया जाएगा। साल के तौर पर बंदेखा बाखा करने से 25 सेंट बढ़ जाएंगे, यानी 2 यूरो 55 सेंट हो जाएगी। सबसे नुमाया इजाफा तैरीफा दोस्त में हुआ है। रात के किरायों की एवरेज 8 बजे से सुबह 8 बजे तक और वीकेंड और छुट्टियों में 6.2% इजाफा होगा। इस टैरिफ में फी किलोमीटर कीमत 1 यूरो 45 सेंट से 1 यूरो 51 सेंट हो जाएगी, यानी ये 6 सेंट बढ़ जाएगी। जहां तक सप्लीमेंट का ताल्लुक है, वो सफर जिनका आगाज या मंजिल हवाई अड्डे या पोर्ट है, उनकी लागत 4 यूरो 50 सेंट यानी 20 सेंट ज्यादा होगी। और बिलखसूस रात को जैसे फेस्टा दे सान खुआन, क्रिसमस की नाइट और नए साल की शाम 3 यूरो 50 सेंट में 40 सेंट का इजाफा होगा। दूसरी तरफ तैरीफा क्वात्रो यानी एयरपोर्ट से पोर्ट तक का सफर 39 यूरो की फिक्स प्राइस होगा। गुज़िश्ता साल टैक्सी के किरायों में 2.8% इजाफा हुआ था, जबकि 2021 में कोरोना वायरस के बहरान की वजह से कीमतें नहीं बढ़ी थी। स्पेन के जजीरा ग्रान कनारिया पहुंचने वाले तीनों अल्जायरी इमिग्रेंट्स ने असाइलम की दरखास्तें जमा करा दी हैं। ये तीनों इमिग्रेंट्स एक बहरी जहाज के स्टीयरिंग ब्लेड पर सवार होकर स्पेन पहुंचे थे। स्पेन की हुकूमत ने इन तारकीन वतन के मुतालिक तफसीलात बताते हुए कहा है कि ये तीनों नाइजीरियन शहरी हैं और इन्होंने स्पेन पहुंचते ही पनाह की दरखास्त दी थी। इसमें एक शख्स जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वो अस्पताल में जेर इलाज है। एनजीओ कामिनांडो फ्रंटेरा ने मुतालबा किया है कि खतरनाक सफर से गुजरने वाले तीनों अफराद की जाती जिंदगी के हालात का तजिया करके उन्हें स्पेन में रहने की मुस्तकिल इजाजत दी जाए। ये बहरी जहाज बिना किसी पड़ाव के 11 रोज तक मुसलसल सफर करके स्पेन के जजीरा ग्रान कनारिया पहुंचा था। नाज़रीन मोहतरम, यह था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट टीवी को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।